Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed exercise 12.2 and in today's session we are going to see how to add and subtract different algebraic expressions. Okay, so before going to algebraic expression, first we will see how to add terms of algebraic expression. Okay, for example, if we have two terms, suppose 2xy and 3xy. Okay, so you can see clearly these two terms are like terms. Why? Because their algebraic factors means xy is same in both the terms. Okay, यहाँ पर दोनों ही टर्म्स में जो algebraic factors है मीन्स कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल क्या है, सेम है, इसलिए क्या है, लाइक टर्म्स है. सो लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड. इन्हें हम क्या ऐड कर सकते हैं. नाउ सी हाउ टू ऐड दीज टू. सो 2xy प्लस वी आर एडिंग, सो प्लस 3xy. Okay, now factorize these two. So 2 into x into y plus 3 into x into y. Okay, now these numerical factors we will put in bracket. Okay, see, if we take this 2 in bracket and this 3, so 2 plus 3 if we put in bracket, remaining will be the out of bracket means algebraic factor, that is same xy. So x into y. So 2 plus 3 is 5 into x into y, that is equals to 5xy. So addition of these two like terms is 5xy. Okay, now you will see, ma'am, why we are putting these 2 and 3 in bracket. हम bracket में numerical factors को क्यों put कर रहे हैं. So see, 2 into xy plus 3 into xy. So distributive property we are applying here. What? A into b plus a into c. A into b plus a into c is equals to a into b plus c. Okay, if suppose here xy is a and b is 2, same xy is a, 3 is c. Okay, so in bracket b plus c means 2 plus 3 into a is x and y. ओके, इसको अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं. देखिए, 2 इंटू एक्स वाई प्लस 3 इंटू एक्स वाई. ओके, यहाँ पर 2 एंड 3 क्या है, बी एंड सी, और ए क्या हो गया आपका, ये एक्स वाई, जो कि दोनों में सेम है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू मीन्स एक्स वाई इंटू इन ब्रैकेट 2 प्लस this 3. Okay, so xy into 2 plus 3 is 5 and 5 is a constant and we put it before the algebraic factors, so 5xy. Okay, so simply we are adding two like terms. These two are like terms. So if we add two like terms, so simply we add their numerical factors and the algebraic factors remain same. तो जब भी हम दो like terms को ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, उनके numerical factors को ऐड करेंगे और जो भी algebraic factor है that will remain same in result. वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो ये इतना ये लॉन्ग प्रोसीजर हम नहीं करेंगे जब भी हम
लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे या एल्जेब्रिक टर्म्स को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे, तो वहाँ पर हम लाइक टर्म्स को डायरेक्टली ऐड करेंगे, ठीक है, सिर्फ उनके न्यूमेरिकल फैक्टर्स को ऐड करेंगे और जो भी अलजेब्रिक फैक्टर है वो सेम रहेगा आपका। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल हियर। देयर आर 3 like terms because their algebraic factors are same. Okay, so if we add these 3, so 2mn plus 5mn plus 7mn. Okay, next step is add the numerical factors, means if we put in bracket 2 and this plus 5 and this plus 7 and the algebraic factor will remain same, so m n. ओके, सिर्फ हमें न्यूमेरिकल फैक्टर्स को, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ऐड करना है और अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं वो आपके सेम रहेंगे। ओके, सो 2 + 5 is 7, 7 + 7 is 14, so 14 mn. See these two terms, 2x² y and 3xy square. So you can clearly see here the combination of variables, means algebraic factors here are not same. Okay, here x² y and here xy². यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, मीन्स ये जो अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं ये क्या है, दोनों ही टर्म्स में डिफरेंट है, मीन्स ये कैसे अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। ओके, दे कैन नॉट बी एडेड। If we write this 2x² y plus 3xy². So after this there is no any step. This will be the result only. Okay? इन दो टर्म्स को जो कि कैसे हैं, अनलाइक हैं, डिफरेंट है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम इन्हें एडिशन में पुट भी करते तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। Okay, let's move to the subtraction of like or unlike terms. So these are two like terms because their algebraic factors are same, xy, xy. That's why they can be subtracted also. ठीक है, जब टर्म्स आपके like होते हैं तो ही हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सी 3xy minus xy, 3xy minus xy, we are subtracting this second term from this first, so 3xy minus xy. Okay, so the only numerical coefficient will be subtracted. So see 3 minus, before xy there is no any constant, so we will consider here 1, so 3 minus 1 and the algebraic factors will remain same out of the bracket. Okay, सिर्फ हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को ऐड, अगर एडिशन कर रहे हैं, अगर सपोज सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल फैक्टर्स और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 3 minus 1 algebraic factor will remain same. So 3 minus 1 is 2xy. Okay, so this is how we subtract like terms. If we take unlike terms, suppose here 3xy and this is xy². So you can see these two are unlike terms, so they cannot be subtracted. So if we put these 3xy in subtraction, 3xy minus xy², so they cannot be subtracted, the result will be the same. ओके, इन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट एज इट इज होगा 3xy minus xy². ओके, लेट्स मूव टू द addition of algebraic expression that consist of like or unlike terms. Okay,
For example, if we have two algebraic expression, first one containing three terms 1, 2, 3, and the second algebraic expression containing two terms 2ab and b square. Now we have to add these two. Okay, so there are two ways to add these two. Let's see the first way. So first algebraic expression is 3ab plus a square plus v square, plus the second algebraic expression is 2ab plus b square. Okay, first algebraic expression plus second algebraic expression. Now we will collect the like terms. क्योंकि like terms को हम add और subtract कर सकते हैं, इसलिए हम like terms को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, मीन्स एक साथ लाएंगे. सो सी द फर्स्ट टर्म 3ab, ab वाले टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे. सो 3ab एंड दिस 2ab. तो जब भी हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो हमें क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को रीअरेंज करना पड़ेगा. और रीअरेंज करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है कि इन लाइक टर्म्स के साथ जो साइन है, साइन चेंज नहीं होना चाहिए. अगर 2ab प्लस का है तो प्लस के साथ ही हम इसको यहाँ पर अरेंज करेंगे. ओके, अगर ये सपोज माइनस का होता तो माइनस साइन के साथ इसको हम यहाँ पर लाते. ओके, सो 3ab एंड दिस प्लस 2ab. ओके, एंड नेक्स्ट टर्म इज a square and a square is plus means plus a square. किसी भी टर्म को अगर इधर उधर हम रीअरेंज करते हैं तो साइन के साथ करेंगे. ओके, सो a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है. नेक्स्ट क्या है, b स्क्वायर, सो प्लस b स्क्वायर. यस, यहाँ पर भी b स्क्वायर का टर्म है, सो प्लस b स्क्वायर. तो देखिए ये लाइक टर्म्स को हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया, मीन्स एक साथ लिख लिया. अब हमें इन्हें ऐड करना है. सो अलजेब्रिक फैक्टर सेम है, सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपका ऐड होगा. सो 3 + 2 is 5. सो 5ab. ओके, एंड दिस टर्म इज अलोन, सो वी विल राइट इट एज इट इज a square. नेक्स्ट b square plus b square. Algebraic factors is b square, but there is no any numerical coefficient, so here we will consider 1. So 1b square plus 1v square means 1 plus 1 is 2b square. Okay, 1b square plus 1v square. So numerical coefficient ऐड हो जाएंगे, 1 plus 1 is 2. algebraic factors क्या होंगे, सेम रहेंगे. अब देखिए ये तीनों ही टर्म्स क्या हैं आपके, अनलाइक टर्म्स है, सो दे कैन नॉट बी एडेड. सो द रिजल्ट विल बी द सेम, 5ab plus a square plus 2b square. Okay, so the result of this addition of these two algebraic expression is 5ab plus a square plus 2b square. Okay, so this is the one way we can add the algebraic expressions. Now see the second way. सेकेंड वे में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नीचे हम सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं. ठीक है, तो अगर सपोज फर्स्ट हमारा क्या है, 3ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 3ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये तो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लाइक टर्म्स को हम इस फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेकेंड अलजेब्रिक का फर्स्ट टर्म 2ab, सो 3ab के नीचे ही हम 2ab को लिखेंगे. सो 2ab विद साइन के साथ. नेक्स्ट क्या है, b स्क्वायर. सो यहाँ पर भी b स्क्वायर का टर्म है, सो b स्क्वायर को b स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे, मीन्स प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है तो वो स्पेस हम खाली रहने देंगे. ओके, नाउ एडिंग. जैसे हम
प्राइमरी क्लासेस में नंबर्स को ऐड करते थे, उसी तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करें। मीन्स वंस के नीचे वंस होना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस डिजिट होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म ही होना चाहिए। ठीक है, सो ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ वी विल ऐड दिस। सी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1b square plus 1b square means 1 plus 1 is 2, so 2b square and plus sign. ओके, यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 0। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है तो इसको हम 0 ले सकते हैं। और 0 को आप किसी भी टर्म में, वेरिएबल में या नंबर में ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपका सेम ही रहता है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है वही यहाँ पर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के साइन के साथ। ओके, नेक्स्ट 3ab प्लस 2ab। सो न्यूमेरिकल जो फैक्टर्स हैं, मीन्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं, वो ऐड होंगे। सो 3 + 2 = 5 और अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम रहेंगे, मीन्स वेरिएबल्स। ओके, सो रिजल्ट बिकम 5ab प्लस a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। देखिए दोनों ही वे में क्या आ रहा है, आंसर आपका सेम आ रहा है। या तो आप इस मेथड से कि पहले लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए, उनको ऐड करिए, नहीं तो ये जो कन्वेंशनल मेथड जो आप स्टार्टिंग से एडिशन पढ़ते आ रहे हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर के नीचे लिखकर, ठीक है, उनको ऐड करना। तो इसी तरीके से यहाँ लाइक के नीचे हम लाइक टर्म को प्लेस करेंगे विद द साइन, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी ऐड 2 or more algebraic expression. Okay, let's move to the subtraction of algebraic expressions. So let's see how to subtract algebraic expression with this example. So subtract 2xy plus 5x square plus 3y square from 3x square minus 4y square plus 3xy. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इस algebraic expression को आपको किस में से, सेकेंड algebraic expression में से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम एडिशन में कर रहे थे, तो एडिशन में क्या है, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। सो आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी से भी ऐड कर सकते हैं, बट सब्ट्रैक्शन क्या है, कॉम्यूटेटिव नहीं है। मीन्स अगर हम a में से b को माइनस कर रहे हैं, b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ओके, a माइनस b इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। मीन्स अगर a में से b को सब्ट्रैक्ट करें या b को a में से सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट सेम रहने वाला नहीं है। सी 7 minus 5 is what, 2, but 5 minus 7 is not 2, it's minus 2. So these two are not equal. Okay, these two are not equal. That is why a minus b is not equals to b minus a. तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप किसको किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एडिशन लेते हैं, सो 7 + 5 इज इक्वल्स टू 5 + 7। दोनों का ही आंसर क्या है, 12 है। 7 को 5 से ऐड करिए या 5 को 7 से ऐड करिए, दोनों का ही आंसर सेम है। सो एडिशन आपका कॉम्यूटेटिव है, एडिशन आप किसी भी दोनों तरीके से एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस कर सकते हैं, बट सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं है। सो सब्ट्रैक्शन के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सब्ट्रैक्ट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस, मीन्स फ्रॉम के बाद वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें से हम इस फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम पहले लिखेंगे और फर्स्ट को सेकेंड में। सब्ट्रैक्शन, ओके, सो सब्ट्रैक्शन भी हम 2 वे से कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे देखते हैं। See, we are subtracting this from this, so we will write this first. So 3x square minus 4y square plus 3xy. Okay? एडिशन होता तो हम क्या करते, फर्स्ट को भी पहले लिख सकते हैं, बट यहाँ सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन में किसको किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे। ओके, देन माइनस, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का साइन पुट करते हैं, तो माइनस का जब साइन पुट करेंगे तो ये जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम हमेशा
ब्रैकेट में पुट करेंगे। सो 2xy प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ओके, दिस मीन्स व्हाट? वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस algebraic एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। ओके, अब यहाँ पर क्या है, एक टर्म नहीं है, यहाँ पर मोर देन वन है, इसलिए हम इस algebraic एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में पुट कर रहे हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप। सो 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3xy। If we open this bracket, so this minus sign will be multiplied by each term. ओके, जब भी हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, तो इस माइनस साइन का हर एक टर्म के साथ क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। सो सी, माइनस इंटू, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है। सो माइनस इंटू प्लस 2xy इज माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो माइनस 2xy। नेक्स्ट, माइनस इंटू प्लस 5x स्क्वायर, प्लस का है, सो माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज माइनस, सो माइनस 5x स्क्वायर। नेक्स्ट, माइनस इंटू दिस प्लस इज ऑल्सो माइनस, सो माइनस 3y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कोई ब्रैकेट नहीं है, ये सिंपली हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया तो अब हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, लाइक टर्म्स को कंबाइन, कलेक्ट करना। सो 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टर्म देखिए, यस 5x स्क्वायर। ओके, सो इस 5x स्क्वायर को हम यहाँ पर रीअरेंज तो करेंगे बट विद दिस माइनस साइन, सो माइनस 5x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या है? माइनस 4y स्क्वायर, सो y स्क्वायर के टर्म्स, सो माइनस 4y स्क्वायर, सी माइनस 3y स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पर अरेंज करेंगे, माइनस 3y स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म इज प्लस 3xy, प्लस 3xy, सो नेक्स्ट माइनस 2xy। ओके, तो देखिए ये एक लाइक टर्म का कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पर ये। अब इन तीनों को सॉल्व करिए। तो जब भी लाइक टर्म्स होते हैं तो सिर्फ हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ क्या है? सब्ट्रैक्शन। सो 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 एंड एल्जेब्रिक फैक्टर एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर माइनस 4 माइनस 3 दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में पुट करेंगे और ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, सो माइनस 4 माइनस 3y स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट प्लस 3 माइनस 2xy। ओके, सो 3 माइनस 5 इज व्हाट? माइनस 2। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सो सब्ट्रैक्शन होगा। सो 5 माइनस 3 इज 2। अब इस सब्ट्रैक्शन के बाद साइन क्या होगा? ग्रेटर नंबर का, दैट इज 5 हियर, और 5 से पहले कौन सा साइन है? माइनस का, सो माइनस 2x स्क्वायर। ओके, प्लस माइनस 4 माइनस 3 दोनों ही नेगेटिव हैं तो ऐड होंगे, सो 4 प्लस 3 इज 7 and the sign will go with greater number, that is 4, so minus 7, minus 7 है इसलिए हम ब्रैकेट में पुट कर रहे हैं, then y square plus 3 minus 2 is 1, so 1xy. Okay, now see minus 2x square, if we open this bracket, so plus into minus, plus बाहर ब्रैकेट के बाहर साइन है और ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर माइनस 7, सो प्लस इंटू दिस माइनस इज माइनस 7y, और 1 को हम ऑमिट करते हैं, सो xy. सो द रिजल्ट ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन इज माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7y प्लस xy. ओके, तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो जिसमें इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको पहले लिखेंगे और जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे, और उसको भी हम ब्रैकेट में पुट करेंगे। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है और इस माइनस का हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? लाइक टर्म्स को कंबाइन करना, जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ, फिर उनको सॉल्व करना। ओके, नाउ सी द सेकेंड वे ऑफ सब्ट्रैक्शन।
सेकेंड वे हमारा बिल्कुल एडिशन की तरह है। क्या? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लाइक टर्म्स को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लाइक टर्म्स के साथ ऐड करेंगे और एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको आपको पहले लिखना है। सो 3x² माइनस 4y² प्लस 3xy। ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद लाइक टर्म्स को लाइक के नीचे ही रखेंगे। मीन्स सेम वेरिएबल्स वाले टर्म्स को सेम वेरिएबल के नीचे ही पुट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3x², यहाँ पर x² का क्या टर्म है और साइन के साथ, सो प्लस 5x², x² को x² के नीचे ही, देन y², तो यहाँ पर क्या है 3y² और 3y² के आगे साइन क्या है, प्लस। ओके, नेक्स्ट क्या है 2xy, सो 3xy के नीचे हम 2xy को पुट करेंगे विद साइन, यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है। ओके, तो हमने क्या किया, लाइक को लाइक के नीचे पुट किया है। ओके, नाउ सी here we are doing subtraction. So यहाँ पर सिर्फ नंबर्स नहीं है, यहाँ पर टर्म्स हैं और टर्म्स क्या है, अलजेब्रिक और कांस्टेंट का प्रोडक्ट है। ओके, सो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं सो माइनस का हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए इस माइनस का हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी साइन आ रहा है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद दिस नेगेटिव साइन वी विल पुट हियर बिलो। सी माइनस इंटू, यहाँ पर कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस है, सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो फाइनल साइन वी विल राइट हियर। माइनस इंटू दिस प्लस इज माइनस, so final sign of this term is minus and we will put here, so minus into plus is minus. ओके, एडिशन होता तो सिंपली हम इनको ऐड कर देते, ठीक है, बट यहाँ सब्ट्रैक्शन है, माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन का ये सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और जो भी फाइनल साइन आ रहा है उसको हम यहाँ पर इस तरीके से नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो टर्म्स हैं उनका साइन क्या है, ये नीचे वाला, ये नहीं है। ठीक है, अब सॉल्व करिए, 3xy माइनस 2xy, सो 3 माइनस 2 इज 1, वेरिएबल्स विल रिमेन सेम। साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, 3 है, 3 के आगे प्लस का साइन, सो प्लस 1xy। ओके, यहाँ पर देखिए -4y² and -3y² both are negative, so they also be added, so 4 plus 3 is 7y², sign will go with greater number that is 4, so minus। ठीक है, नेक्स्ट 3x² माइनस 5x², एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, सो 5 माइनस 3 इज 2x², साइन किसके साथ जाएगा, ग्रेटर नंबर दैट इज 5, बिफोर 5 देयर इज नेगेटिव साइन, सो इन आंसर ऑल्सो देयर विल बी नेगेटिव। ओके, सो द फाइनल रिजल्ट इज माइनस 2x² माइनस 7y² प्लस xy। ओके, तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इस वे में भी कर सकते हैं, उस वे में भी कर सकते हैं। इस वे में आपको याद रखना है कि फ्रॉम के बाद वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम पहले लिखेंगे जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको उसके नीचे लिखेंगे, और नीचे जब लिखेंगे तो लाइक को लाइक के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, xy को xy के नीचे, y को y² को y² के नीचे, x² को x², लेकिन उनके साइन के साथ। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि इस माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सो इस माइनस साइन का हर एक टर्म के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो फाइनल साइन होता है उसको हम इस तरीके से नीचे लिख लेते हैं। ओके, फिर इस फाइनल साइन के साथ इस टर्म को कंसीडर करना है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंगली। ओके, so that's all about today's session in which we have
discussed how to add or subtract terms than algebraic expressions. If you have any query, doubt related to today's session, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss exercise part, means 12.2. Till then, keep watching my channel. Thank you.